Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing very well. Today we would be taking start of our next chapter, and that's chapter number 22. The title of that chapter is Inheritance, right? But before going into the detail of this chapter, we have to discuss about certain terminologies which would be repeatedly coming while in different topics of this chapter. So that's why it's important to make our concept clear regarding these terminologies, right? Okay. With this respect, first of all, we must know that what is gene, what's allele, what's locus, what's homozygous, heterozygous. Beside this, about the F1 generation, P generation, F2 generation. Beside this, we must know about the dominant trait and recessive trait, etc. So then we would be taking start of our proper topics, right? Okay. So first one is gene, right? What is gene? We would be first discussing gene and allele. Why? Because these two are linked together, right? Gene, the functional part of the DNA is called as gene. Gene occur in pair, right? What's allele? An alternate form of a gene that's called as allele. Okay, let's see in the diagram. In the diagram, you can see we have two chromosomes which are homologous chromosome. What are homologous chromosome? Homologous chromosome, they are those chromosomes which are similar in structure, shape, and they are carrying the same chromosome, the same genes for same characteristic. Okay. If you see over here, these are the homologous chromosome. Homologous chromosome, you can see while over here in the diagram, which are similar in shape and structure, and they are carrying the same gene for same characteristic. Okay. Now we know that the chromosome, they are majorly made up of what? They are majorly made up of DNA. हमें पता है कि क्रोमोसोम मेजरली किस चीज से बने हैं? मेजरली ये DNA से बने हैं. Okay. So the functional part of DNA is called as gene. एंड जीन दे आकर इन पेयर. होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर आप देख सकते हैं कि जीन का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, यानी इसके जो दोनों कंपोनेंट है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों मिल के जीन बनाते हैं, राइट? अब अलील हमने कैसे डिफाइन किया कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन यानी जीन पेयर जो है, या इस जीन को अगर हम ले लें जिसके दो कंपोनेंट है, एक आप देख सकते हैं जो डार्क पिंक कलर का है, दैट इज वन अलील, और दूसरा जो लाइट कलर का वाइटिश का आपको नजर आ रहा है, दैट इज सेकंड अलील. तो जीन चूंकि पेयर के फॉर्म में आकर होते हैं, दैट्स व्हाई उस पेयर का एक मेंबर अगर हम कंसिडर कर ले तो that is called as what? That is called as allele. In the diagram, you can see like this is one of the gene pair and the alternate form, यानी ये या ये अगर हम consider कर ले, so this individual is called, the individual component of that gene pair is called as allele, right? Okay. अब if you see over here, तो हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है और जिसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट एक होमोलोग के ऊपर और दूसरा कंपोनेंट दूसरे होमोलोग के ऊपर है. हम चूंकि मेंडल के लॉ से स्टार्ट लेंगे तो इसीलिए मेंडल के लॉ की जो एग्जांपल्स हैं उसमें से एक एग्जांपल को उठा के हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट किया है. यू कैन सी ओवर हियर के ये पर्पल फ्लावर कलर का अलील है और ये वाइट फ्लावर कलर का अलील है. दोनों अगर हम देखें तो है तो कंट्रोल किसको कर रहे हैं? फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक करेक्टरिस्टिक है. लेकिन इस करेक्टरिस्टिक के फर्दर दो ट्रेट है. यू कैन सी कि एक पर्पल और एक वाइट. तो वी आर सेइंग के अब दोनों केस को अगर आप ले लें, है तो फ्लावर कलर्स ही ना, तो एक ही करेक्टर है और इसको ये जीन कंट्रोल कर रहा है, राइट? अब ये पर्पल के लिए मैंने कैपिटल पी लिया है और वाइट के लिए मैंने स्मॉल पी लिया है, क्योंकि पर्पल जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि डोमिनेंट करेक्टर क्या है. और वाइट जो है यू कैन सी ओवर हियर से दैट इज रिसेसिव करेक्टर. अब पी प्लांट में हम इसको डिस्कस करेंगे व्हेन वी वुड बी टेकिंग स्टार्ट ऑफ मेंडल्स लॉ व्हाइल इन प्रिपेयरिंग द चेकर बोर्ड्स एक्सेट्रा. जी
अब कैपिटल पी और स्मॉल पी ये इन दो अलील को प्रेजेंट कर रहे हैं। पर्पल अलील को मैंने कैपिटल से शो किया है और वाइट अलील को मैंने स्मॉल पी से शो किया है। अब इस इंडिविजुअल कैपिटल पी को या स्मॉल पी को, यानी जो पर्पल अलील है, पर्पल कलर के लिए अलील है और वाइट कलर के लिए अलील है, इनको इंडिविजुअली अगर हम ले लें तो दैट इज बेसिकली अलील, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जीन बनाते हैं। ओके, next, locus. What is locus? The position of allele on homologous chromosome is called as its locus. You can see on this homolog chromosome purple color flower color जो है उसके लिए जो allele responsible है, you can see the position is this. So it is the locus of this allele. और white flower color के लिए जो allele है, white flower color के लिए जो allele है, तो you can observe it over here, it's called as its locus. तो अलील का या जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? We call that as locus, right? Okay, then next, homozygous gene and heterozygous gene. Okay. If a gene pair on homologous chromosome is having the same allele, it's called as homologous gene or homozygous gene. For example, capital P और small p जी, यहाँ पे आप अगर देख लें कि हमने डिस्कस किया अभी कि एक जीन के दो अलील है अकॉर्डिंग टू मेंडल के लॉज के मुताबिक, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिए हैं, तो उसमें एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस जीन के दो कंपोनेंट है जिनको हम अलील कहते हैं, राइट। अब अगर उस जीन के जो दो कंपोनेंट है यानी दो अलील है वो अगर बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी ये अगर पर्पल फ्लावर कलर का अलील है और यहाँ पे दूसरे होमोलोग के ऊपर भी पर्पल फ्लावर कलर का अलील ही होता, तो दोनों पर्पल फ्लावर कलर के अलील मिल के एक होमोजाइगस जीन बनाते, क्योंकि जीन के ये दोनों कंपोनेंट एक एग्जैक्टली दीज आर द सेम। लेकिन if a gene pair on the homologous chromosome they are different from each other, it is called as heterozygous gene. जी, एक्चुअली जो आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है कि ये एक जीन पेयर है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट एक अलील पर्पल फ्लावर कलर के लिए है और दूसरा जो है वो वाइट फ्लावर कलर के लिए है तो दोनों ही फ्लावर कलर, लेकिन इसके ट्रेट अलग अलग है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हेट्रोजाइगस जीन। क्यों? क्योंकि जीन के जो दो अलील है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। मीन के फ्लावर कलर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शेड उसके अलग अलग है। मीन के एक जो है पर्पल शेड को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है वो वाइट कलर को कंट्रोल करता है फ्लावर के, राइट। अब इसको जब हम प्रेजेंट भी करेंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी यू कैन सी ओवर हियर। तो सपोज यहाँ पे ये एक जीन है, एक जीन पेयर है, तो इस जीन पेयर को कैपिटल पी स्मॉल पी से प्रेजेंट किया गया है। दिस इज शोइंग द हेट्रोजाइगस जीन। और यहाँ पे होमोजाइगस में यू कैन सी कैपिटल पी अगर दोनों पर्पल के होते एंड स्मॉल पी अगर दोनों वाइट के होते, तो देन वी वुड कॉल इट एज होमोजाइगस जीन, राइट। ओके, next is P generation. What is P generation or P1 generation? P generation, the original pure breed, that is homozygous breed, is called as P1 generation or P generation. P generation means parental generation. मेंडल्स के लॉ में जब भी हम पानेट स्क्वायर या एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्योर ब्रीड को हम लेते हैं पी प्लांट में, वी कॉल दैट एज पी जनरेशन आर P1 जनरेशन। जी, वो हम डिफरेंट करेक्टर को आगे जब डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि मेंडल ने भी 7 डिफरेंट करेक्टर को लिया था। जिस तरह पर्पल फ्लावर कलर एंड वाइट फ्लावर कलर, यानी फ्लावर कलर भी एक करेक्टरिस्टिक था,
इसके अलावा टॉल एंड ड्वार्फ भी अगर हम ले ले तो प्लांट की जो हाइट थी वो भी एक करेक्टरिस्टिक था. Beside this, we would also discuss the seed color, that is whether it's yellow or green. Beside this seed का जो shape है, that whether it's round or wrinkle. तो different characteristic को लिया था और 7 distinct characteristic को लिया था. Distinct contrasting characteristic को मेंडल ने लिया था. अच्छा, उसमें से जो भी करेक्टर हम उठा के पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं उसका तो जो ओरिजिनल हम प्योर ब्रीड लेते हैं तो we present that as P1 generation, right? Suppose फिर P generation यानी parental generation हमने लिया. यहाँ पे आप थोड़ा अगर देख ले, सपोज पेरेंटल जनरेशन जो मेंडल ने लिए कि टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया. टॉल प्लांट को हमने प्रेजेंट किया, यू कैन सी ओवर हियर कैपिटल टी. टॉलनेस एक हम कहते हैं प्लांट की जो हाइट है ये एक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके फर्दर 2 ट्रेड्स थे, एक जो टॉल थे और एक जो ड्वार्फ थे. टॉल डोमिनेंट करेक्टर था और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव करेक्टर था. तो टॉल प्लांट को जब ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया गया, दोनों में आप देख सकते हैं कि टॉल भी प्योर फॉर्म में है. प्योर फॉर्म में का मतलब ये कि ये जीन जो है इसमें दोनों अलील टॉल है, कैपिटल टी है. और ड्वार्फ भी प्योर ब्रीड है, यानी ड्वार्फ के लिए भी जो जीन रिस्पॉन्सिबल है और उसमें जो 2 अलील है तो वो दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं, दैट स्मॉल टी. दोनों को क्रॉस करने के बाद इनकी जो जनरेशन आती है इसको हम कहते हैं F1 generation. F it stand for filial. Filial का मतलब है the offspring, young one, kids या जो generation है, ठीक है. तो you can see के P generation या parental generation को क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आ जाए उनसे we call that as filial generation or F1 generation. Okay. F2 generation क्या है कि जब हम F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल है, यहाँ पे अगर आप देखें कि पेरेंटल जनरेशन जो प्योर ब्रीड थे लेकिन अलग अलग ट्रेड के थे, एक टॉल ट्रेड था दूसरा ड्वार्फ था, दोनों को क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो इंडिविजुअल प्लांट आ गए सारे के सारे हेटेरोजाइगस थे कि उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था सब में, लेकिन अपेरेंटली सारे के सारे हमें टॉल नज़र आ रहे थे. हालांकि अलील तो उसमें ड्वार्फनेस का भी था, एक अलील टॉलनेस का और दूसरा ड्वार्फनेस का, लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे प्लांट हमें टॉल नज़र आए, राइट. ये जो टॉल प्लांट हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे F1 जनरेशन में इन हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट को अगर ले ले, उन हेटेरोजाइगोट F1 को F1 के साथ अगर क्रॉस किया जाए और इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आ जाए, यानी इनके बाद जो प्लांट्स इनके सीड्स डेवलप हो जाए और प्लांट्स आ जाएं, तो वी वुड बी कॉलिंग दैट जनरेशन एज F2 जनरेशन. इसको हम F2 जनरेशन कहेंगे. अब पेरेंटल जनरेशन तो वो था जो प्योर ब्रीड का था. फिर पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आ गया इसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया और F1 में जो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल थे उनको लेके, मेल और फीमेल को लेके उनको क्रॉस किया, तो फिर हमारे पास F2 जनरेशन आ गया, राइट. अब डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट में क्या डिफरेंस है. Those characters are traits which appear in F1 generation are called as dominant character. For example, tall pea plant. जी, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर ले तो जब टॉल प्लांट को हमने ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया तो एज अ रिजल्ट F1 में सारे के सारे टॉल तो आ गए, लेकिन फिनोटिपिकली मतलब अपेरेंटली जब हम उनको देख रहे थे सारे के सारे टॉल थे, लेकिन एक्चुअली जब हम उनके जीन को स्टडी करते हैं तो उनके जीन में एक अलील टॉल का था लेकिन दूसरा ड्वार्फ का भी था, लेकिन सिर्फ टॉल के करेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सप्रेस हो गए और ड्वार्फनेस का करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ. इसका मतलब है कि ये एक जीन जो टॉल का था वो डोमिनेटेड था स्मॉल टी के ऊपर. इस कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया,
तो इसलिए सिर्फ कैपिटल टी यानी टॉलनेस की जो करेक्टरिस्टिक थी वो एक्सप्रेस हो गई F1 जनरेशन में। तो वो करेक्टरिस्टिक जो F1 जनरेशन में या वो ट्रेड जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेड, और वो जो सप्रेस हो जाए, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ना हो जाए, हिडन रह जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव, राइट? Okay, those character are traits which appear in F1 generation are called as dominant character. Sorry. And the example is tall pea plant. In F1 generation, we have got it over here. G. Recessive. Those characters which are hidden are disappear in F1 generation and reappear in F2 generation in homozygous form. That's called as recessive. For example, dwarf pea plant. G. यहाँ पे F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगोट को जो हम ले रहे हैं ना, तो इसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों के अलील प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस का अलील चूंकि डोमिनेंट है तो इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस करता है, और ड्वार्फनेस का अलील जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, F1 जनरेशन में हिडन रहता है, इसलिए इसको हम रिसेसिव कहेंगे। और जो अलील रिसेसिव होगा तो वो कभी भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ड्वार्फ प्लांट तब हमें ड्वार्फ नजर आएंगे कि जब वो प्योर ब्रीड होगा, उसमें मौजूद जो हाइट के जीन हैं वो दोनों के दोनों स्मॉल टी हों यानी रिसेसिव हों, राइट? ओके जी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया जीन को, अलील को, लोकस को, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीन को, थोड़ा हमने डिफाइन किया होमोलोगस क्रोमोसोम को भी। बिसाइड दिस वी आल्सो डिस्कस अबाउट द P generation, RP1 generation, F1, F2 generation. Beside this, what's dominant trait, what's recessive trait. So now we have to move towards to take start of our proper topic right now. G. Okay. अब हम स्टार्ट लेंगे inheritance. That is the title of the chapter as well, right? Inheritance में चैप्टर जो हम स्टार्ट ले रहे हैं उसका फर्स्ट अगर हम definitions देखें तो first which is given that is heredity. What is heredity? Let's see. The transfer of characters from parents to the offspring is called as heredity. However, it's not necessary that all those characters transferred from parents to the offspring must be expressed. G. हम कहते हैं कि character they are transmitted from parents to the offspring, but it's not compulsory that all the characters they must be expressed in the offspring as well. ज़रूरी तो नहीं है कि जो ऑस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह हो और सारे के सारे करेक्टर उसमें एक्सप्रेस हो जाएं, ठीक है? ओके, फिर इनहेरिटेंस क्या है? The acquisition of characters from those characters which the zygote has received from parents during the cellular differentiation is called as inheritance. As we said that all the characters which are transferred from parents to the offspring, they are not expressed, but some of them are expressed selectively. जी, जिस तरह heredity में हमने कहा कि the transmission of character from parents to the offspring, जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एक्सप्रेस हों, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो गए और फिर एक्सप्रेस भी हो गए सेलेक्टिवली, तो वी कॉल दैट एज इनहेरिटेंस। और यहाँ पे लिखा भी है कि ड्यूरिंग सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन, अगर आपको याद हो तो सेलुलर डिफरेंशिएशन वी हैड डिस्कस दैट व्हाइल इन द गैस्ट्रूला स्टेज, जब हम डेवलपमेंट के चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो एक स्टेज था जिसको हम कह रहे थे गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रुलेशन में जब 3 लेयर्स एम्ब्रियो बन जाते हैं तो यू कैन सी कि हर एक लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स, स्ट्रक्चर, टिश्यू और ऑर्गन्स को गिव राइज करते हैं। तो दैट इज बेसिकली सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो ओवर हियर व्हाट आर वी सेइंग कि वो करेक्टरिस्टिक जो ट्रांसमिट हो जाए पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में और एक्सप्रेस भी हो जाए ऑस्प्रिंग में, तो वी कॉल दैट एज इनहेरिटेंस। लेकिन डेफिनेटली
कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑस्प्रिंग जो है ह्यूमन बीइंग में अगर हम देख ले तो कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चे एग्जैक्टली रेप्लिका हो अपने पेरेंट्स के, बल्कि स्लाइट वेरिएशन होती हैं। कुछ में ग्रॉस वेरिएशन भी होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल किस लिहाज से, आई कलर के लिहाज से, स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, और इसके अलावा और जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल जो एयर पिना है या एयर लोब वगैरह है, ठीक है। तो वी आर सेइंग के वेरिएशन तो आती रहती हैं, राइट। लेकिन व्हाट आर वेरिएशन नाउ, लेट्स सी। The dissimilarities are differences between offspring and parents. They are called as variation. As offspring, they are not completely identical to the parents and there are always differences. So, these differences, they are called as variation. It may be due to crossing over or mutation, majorly due to crossing over. जब हम कहते हैं ना कि ऑस्प्रिंग जो है या बच्चे कभी भी एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते अपने पेरेंट्स का, बल्कि उनमें वेरिएशन भी होती रहती हैं, तो वी आर सेइंग कि ये जो वेरिएशन या डिफरेंसेस पेरेंट्स से होती है ना ऑस्प्रिंग में, तो दिस इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म विच इज अकरिंग व्हाइल ड्यूरिंग मायोसिस। मायोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो वी आर सेइंग द एक्सचेंज ऑफ फ्रैगमेंट between the homologous chromosome, it is called as crossing over. Crossing over क्या है? meiosis के दौरान जब homologous chromosome आपस में exchange of fragment करते हैं, तो that is called as crossing over, which is leading to variation, right? Okay. Now, what is genetics? The study of heredity, variation, and all those factors affecting these variation is called as genetics. Why? Because when we talk about heredity, which is the transmission of character from parents to the offspring, or variation, which is differences from parents, so we are saying all these are controlled by what? By one of the important element or factor, which is called as gene. So that's why the study of heredity, variation, and all those factors which are affecting this variation is called as genetics, right? As heredity and variation, they are controlled by genes, so the study of gene is called as genetics, right? Now we are moving towards Mendel's work, G. Discovery of genetics. Mendel is also called as father of genetics, right? Many scientists had tried their level best to discover the mechanism of inheritance, but they couldn't do so. In 1866, it was Gregor John Mendel, an Augustinian monk, a man who devoted part of life or all of his life to a religion. So, it was basically Gregor John Mendel, an Augustinian monk, who successfully explained the mechanism of inheritance. That's why he was called as the father of genetics, right? Life history of Mendel. जी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, उन्होंने काम कब शुरू किया और अपने काम को कब पब्लिश किया और उसके काम को रिकग्नाइज किया गया या नहीं किया गया, कब उसके काम को रीडिस्कवर किया गया. लेट्स सी. This is something which is journal about the Mendel, right? Mendel was born on July 22nd, in the year 1822 in Czech Republic and died on 6th January 1884 in Brunn, that's Lower Austria. He entered to the Augustinian monastery at Brunn, Czech Republic, and became actively engaged in investigating variation, heredity and evolution in plant. उनका मेन फोकस, मेंडल का मेन फोकस इस बात पे था कि वेरिएशन को, हेरिडिटी को और एवोल्यूशन को वो इन्वेस्टिगेट करे डिफरेंट प्लांट में. लेकिन उसने जिस प्लांट पे काम किया दैट वाज बेसिकली द पी प्लांट, मेजरली जिस प्लांट पे काम किया और जिस काम को उन्होंने पब्लिश किया. जी. Between 1856 and 1863, he had cultivated about 28,000 pea plants and analyzed them on the basis of 7 pairs of characteristics. He delivered his first lecture in 1865 and published his paper. The title of that paper was
experiment on plant hybridization in the year 1866. मेंडल ने जो काम किया पी प्लांट के ऊपर और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया और तकरीबन 28,000 पी प्लांट उसने कल्टिवेट किए, एनालाइज किए और उसमें 7 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया, क्रॉसेस वगैरह किए और अपने काम को एक पेपर के फॉर्म में या समरी के फॉर्म में पब्लिश कर दिया, जिसका टाइटल क्या था उस पेपर का, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. Keeping these experiments under consideration, he presented his laws which are called Mendel's law. But unfortunately, Mendel's work was neglected for about 34 years due to the following reason. मेंडल के काम को नेग्लेक्ट किया गया राउंड अबाउट 34 ईयर्स तक. कौन कौन से रीजन की वजह से? लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज डार्विन थ्योरी. Biologists, they were preoccupied. One of the reasons was that biologists were preoccupied with Darwin's theory of evolution, which was published in the year 1859. एक तो ये था कि डार्विन ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी, अभी बायोलॉजिस्ट के माइंड में वही चीज़ चल रही थी, तो इसलिए अभी इन्होंने डार्विन के काम को इतनी कंसंट्रेशन नहीं दी. एक ये रीज़न था. दूसरा, द जर्नल कि जिसमें मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया, वो जर्नल अनरिकॉग्नाइज था, लोग उसको ऐसे जितना नहीं पहचान रहे थे. द जर्नल इन विच ही पब्लिश हिज वर्क वॉज अनरिकॉग्नाइज एंड नॉट प्रॉपरली नोन टू पीपल. तो ये भी एक वजह थी जी. फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. चूँकि मेंडल जो था वो मैथमेटिशियन था और स्टेटिस्टिशियन भी था, इसलिए उसने अपने एक्सपेरिमेंटल काम को प्रॉपर स्टेटिस्टिकल टेबुलेशन के फॉर्म में प्रेजेंट किया. उसके ऊपर स्टेटिस्टिक अप्लाई हुए थे और उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे तो उनके इतने स्किल्स नहीं थे, वो स्टेटिस्टिक को इतना ज़्यादा नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे. तो ये भी एक रीज़न कंसिडर किया जाता है. The scientists of the early time, they were not familiar with the statistical analysis of experimental data. उस टाइम के साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं स्टेटिस्टिकल फॉर्म में, तो उसके साथ इतने अवेयर नहीं थे. इसलिए ये भी एक रीज़न था कि मेंडल के काम को इतनी कंसंट्रेशन नहीं मिली. ओके. फिर इसके बाद कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट. पी प्लांट उसने क्यों सेलेक्ट किया, मतलब उसकी क्या, इसमें उनको क्या ऐसे पॉइंट नज़र आए कि जिसने मेंडल को अट्रैक्ट किया और मेंडल ने इस प्लांट को सिलेक्ट किया. जी, एक तो ये कि पी प्लांट इज़ इजीली अवेलेबल है, इजीली कल्टिवेट भी कर सकते हैं, पी प्लांट को इजीली हैंडल भी कर सकते हैं. इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी है कि एक ही फ्लावर में हम कहते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट की यूनियन की वजह से फर्टिलाइजेशन होती है, और इसके अलावा क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है इसमें कि एक प्लांट के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट की तरफ पहुंचे और दूसरे प्लांट पे मौजूद जो फ्लावर है उसमें फर्टिलाइजेशन करें, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. तो दोनों पॉसिबल थी, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी. Beside this, pea plant it has short life cycle, तो कई ज़्यादा जनरेशन वो कम टाइम में ऑब्टेन कर सक रहा था. Pea plant has distinct मीन वाज़िहा contrasting opposite heritable characteristic. Pea plant के कुछ प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक थे, डिस्टिंक्ट वाज़िहा करेक्टरिस्टिक थे कि कुछ जो थे वो डोमिनेंट थे, कुछ रिसेसिव थे. तो इसलिए ये रीज़न थे कुछ कि जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. मेंडल के काम को किसने रीडिस्कवर किया? क्योंकि 34 इयर्स तक तो उसके काम को नेग्लेक्ट किया गया ना. देन लेट्स सी. लेटर ऑन इन 1900 हिज वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 इन्वेस्टिगेटर, दैट इज डच botanist Hugo de Vries, Carl Korn of Germany and Tekmark of Austria. They were the 3 scientists who rediscovered Mendel's work, जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा रीडिस्कवर किया. अच्छा, मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए थे ना, हम बार बार कह रहे थे कि 7 कैरेक्टर उसने स्टडी किए, तो वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? स्टेम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक थे.
इन 7 करेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें तो इनमें फिर दो ट्रेड्स थे। जिस तरह स्टेम हाइट एक करेक्टर है लेकिन इसके 2 ट्रेड है, टॉल एंड ड्वार्फ, के टॉल भी हो सकते हैं और ड्वार्फ भी, तो दो मतलब डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक थे ना। अब सीड शेप हैं तो सीड शेप में राउंड या स्फेरिकल भी थे और रिंकल भी थे। यहाँ पे टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव, राउंड या स्फेरिकल इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव। हमने अपने शुरू के टॉपिक में जब टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे तो वी क्लियर आर कंसेप्ट अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर जी। अच्छा, तो सीड कलर को अगर हम ले ले तो येलो कलर भी था और ग्रीन भी। येलो कलर डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव, क्योंकि यहाँ पे आप इस कॉलम में देख लें द रिसेसिव ट्रेट आर बेसिकली प्रेजेंटेड ओवर हेयर और जो डोमिनेंट ट्रेट थे दे वर प्रेजेंटेड ओवर हेयर जी। इसके अलावा पॉड शेप यानी मटर के पली की का जो छिलका है उसके शेप को इन्फ्लैटेंट जो यूनिफॉर्म था या स्मूथ था और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो कि इरेगुलर था थोड़ा। अभी हम डायग्राम में इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे थोड़ा इन्फ्लैट और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर यानी जो मटर की पली का जो कलर है छिलके का, ग्रीन और येलो, उसमें भी 2 शेड्स थे। फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, और फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल जी। इन करेक्टरिस्टिक को हम थोड़ा अगर डायग्रामेटिकली देख ले जी। पर्पल जो कलर है फ्लावर का दैट इज डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव, एक्सियल जो एक्सिला में फ्लावर की ग्रोथ है, और टर्मिनल जो बिल्कुल एपेक्स के ऊपर हो, यू कैन सी स्टेम के एपेक्स के ऊपर। तो एक्सियल और टर्मिनल भी हमारे पास 2 ट्रेट थे। एक्सियल यू कैन सी और टर्मिनल, एक्सियल वाज डोमिनेंट, टर्मिनल वाज रिसेसिव। जो जो सीड है पी प्लांट का वो येलो कलर का भी था और ग्रीन का भी था। येलो वाज डोमिनेंट, ग्रीन वाज रिसेसिव। राउंड और रिंकल भी थे, राउंड वाज डोमिनेंट एंड रिंकल जो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो थोड़े से, यू कैन सी रिंकल्स इसके ऊपर है, इसका सरफेस यूनिफॉर्म स्मूथ नहीं है। तो द राउंड इज डोमिनेंट करेक्टर, रिंकल इज रिसेसिव। एंड फ्लैटेंड का मतलब है कि जिसकी मटर की जो पली है वो बिल्कुल उसका छिलका यूनिफॉर्म है, यू कैन सी ओवर हियर इसके मार्जिन। जबकि कॉन्स्ट्रिक्टेड में यू कैन ऑब्जर्व दैट इट्स अ लिटिल बिट इरेगुलर एंड दैट्स नॉट टू मच स्मूथ, तो वी कॉल इट एज कॉन्स्ट्रिक्टेड। दिस इज अ रिसेसिव करेक्टर। ग्रीन करेक्टर इज डोमिनेंट पॉट का और येलो इज रिसेसिव। पॉट का मतलब है कि जो मटर की पली है जी। टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव जी। ओके, यहाँ पे तो हमारे पास मेजरली हमने डिस्कस किया, थोड़ा हमने अपना कंसेप्ट क्लियर किया डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पे, और मेंडल के बारे में थोड़ा जनरल हमने डिस्कस किया। अभी इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वी वुड बी टेकिंग स्टार्ट ऑफ मेंडल्स लॉ प्रॉपरली। मेंडल के फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट लेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।